Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed exercise 3 and started exercise 4 of unit 15, pronouns of your English grammar book. And today I'm going to continue with exercise 4 of unit 15, pronouns. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page 69, unit 15, pronouns. Children, please take out your English grammar books and turn to page 69 as I'm going to continue with exercise 4 of unit 15, pronouns. Children, in my last video, I had completed the first 4 sentences of exercise 4. First, I'll be revising those 4 sentences and then I'll be starting with the 5th one. Now the first one. Mrs. Preeti is a teacher. She teaches English. I like her. Second, children watch cartoons. They don't want to study. Parents are worried about them. Third, this shirt belongs to Ram. It is dirty. Fourth, Ruchika and I go for shopping. We buy many novels and storybooks. Teachers praise us for our reading habit. Now the 5th one. And the 5th one is Mindy is my cat. Mindy is fond of milk. I give Mindy milk in a bowl. Now, in this sentence, the underlined words are Mindy. Now, Mindy is a cat. Fine. And what we have learned, for animals and things, we use the subject pronoun it. So we rewrite the sentence replacing Mindy by the pronoun it. Our sentence will be, Mindy is my cat. It is fond. Fond means to like. Fond means pasand karna. It is fond of milk. I give it. All of you know that it remains it only, whether in the subject pronoun or in the object pronoun. Here it is the object pronoun. So I give it milk in a bowl. Clear? Now the 6th one. There are many roses in my garden. I don't pluck roses. Now, in this sentence, we need to replace roses with the pronoun. Roses things हैं and third person plural के लिए हम यहाँ पे I क्या है, subject है, तो roses क्या होगा, object है. तो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, देम.
So we rewrite the sentence. There are many roses in my garden. I don't pluck them. Fine. So with this, children, we have finished our exercise 4th. And now, children, turn the page as I am going to explain demonstrative pronouns. Fine. Okay. Now, children, what are demonstrative pronouns? Demonstrative pronouns point out some particular object या objects. सबको पता है, सबने demonstrative adjective भी पढ़ा था, उसमें 4 demonstrative adjectives थे, if you remember. This, that, these, those. तो वो जो चारों demonstrative words हैं वो ही हम demonstrative pronouns में भी this, that, these, those use करेंगे. This we'll use for one thing which is close to us, that for one thing which is far from us. These is the plural of this. It refers to more than one things near us, and those is the plural of that, and it points out to things which are more than one and far from us. तो this कोई एक चीज जो हमारे पास में है, that कोई एक चीज जो हमसे दूर है, this का प्लूरल है और that those का प्लूरल है. क्लियर? अब यहाँ पे if you look at the examples, fine. Now look at the first sentence given on page number 70 over here. This is my umbrella. In this, children, this जो है वो क्या है? Demonstrative pronoun है. Second, these are my umbrellas. These क्या है? ये भी demonstrative pronouns है. Third, that is a kite. Again, this is demonstrative pronoun. And fourth, those are kites. ये भी demonstrative pronouns है. Fine. So this, that, these, those, ये चारों words demonstrative pronouns भी है. अब बच्चे confuse हो जाते हैं, है ना, कि demonstrative adjective है कि demonstrative pronoun है. So don't get confused between demonstrative pronouns and demonstrative adjectives. ठीक है, अभी मैं आपको example से समझाती हूँ. Now demonstrative pronouns हम यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज को पिन पॉइंट करने के लिए. ठीक है, they point out some particular objects. Fine. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो. This is a glass. This glass is fragile. Fragile means delicate. टूट फूट हो सकती है. अब यहाँ देखो, 2 सेंटेंसेस दिए हैं और दोनों में ही this है. एक सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और एक सेंटेंस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना? अगर आपको याद हो, मैंने समझाया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है. एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड. उसके मतलब कि उसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा जिसको वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है. अब फर्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस इज अ
ग्लास। दिस के बाद क्या है? इज है। इज नाउन तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पे दिस के बाद नाउन नहीं है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये दिस क्या है? ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है बेटा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि दिस के बाद एडजेक्टिव नाउन नहीं, तो ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब सेकेंड सेंटेंस में भी दिस है, ठीक है, लेकिन ये जो दिस है ये क्या कर रहा है? ये जो दिस है ये इस नाउन, इसके बाद क्या है? ग्लास है जो नाउन है। दिस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस ग्लास को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये कौन सा हुआ बेटा? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दिस दैट, तो दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है, और जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके बाद हमेशा नाउन आएगा जिसको वो डिस्क्राइब करेगा। किस केस की हम बात कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें। दिस के बाद नाउन है, दैट मीन्स कि ये दिस एडजेक्टिव है। अनदर एग्जाम्पल, these are muffins। मफिन्स स्मॉल कपकेक्स टाइप जो होते हैं। अब ध्यान से देखो, these है, these भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अब these के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है। आर हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun. Clear? Now look at the next sentence. And the next sentence. These muffins are delicious. अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखो, फिर दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन दीज के बाद क्या है? मफिन्स है। मफिन्स नाउन है, दैट मीन्स ये दीज क्या हुआ? ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद फॉलोड बाय अ नाउन। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर दिस दैट दीज दोस चार है, उसके बाद अगर नाउन आएगा तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। वेयर एज प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कभी भी दिस दैट दीज दोस के बाद नाउन नहीं आएगा। क्लियर? सो ये ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दीज दोस के बाद नाउन आता है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीज दोस के बाद नाउन नहीं आता है। क्लियर? सो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस चार है, दिस दैट दीज दोस, एंड जहां नाउन नहीं आएगा वहां पे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर? तो आई होप अभी सबको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। Now, what are relative pronouns? We use a relative pronouns to refer back to a noun that was used earlier in the same sentence. Relative pronoun वो words हैं जो हम use करते हैं to refer back to a noun that was used earlier in the same sentence. उसी sentence में पहले कोई noun आया है जिसको हम refer करते हैं relative pronoun use करके. Now I'll explain with example. And children, the first sentence is, this is the girl who
won the match। ये फर्स्ट सेंटेंस। अब ध्यान से देखो, दिस इज द गर्ल हु वन द मैच। इसमें हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये रिलेट कर रहा है किसको, उस लड़की को जिसने मैच जीता है ना, क्योंकि हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जिसको ये वर्ड रिलेट, ये हु किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए, तो ये हु इससे रिलेट कर रहा है गर्ल से, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? देन द सेकेंड वन, that is the car which oblique that my uncle bought last week। अब ध्यान से देखो, दिस इज द कार विच ऑब्लिक दैट, मतलब विच भी यूज कर सकते हैं, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट भी। अब ये दोनों वर्ड्स, दोनों में से एक हम यूज करेंगे सेंटेंस में। ये किस नाउन को रिलेट करते हैं, कार को। हम किसकी बात करें, हम इस कार को जो मेरे अंकल ने लास्ट वीक खरीदी है। सो ये विच या दैट दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लियर? देन the third example, have you seen the child whose hair is curly? इसमें बेटा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, whose, क्योंकि whose किसको रेफर कर रहा है, चाइल्ड को। क्लियर? ये चाइल्ड से रिलेट, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस बच्चे की जिसके बाल कर्ली है। क्लियर? देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस इज द book that oblique which, थिंग्स के लिए हम that भी यूज कर सकते हैं या which, दोनों में से कोई एक भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। I bought from the book fair। ओके, अब यहाँ पे दैट और विच दोनों में से कोई जब भी हम यूज करेंगे तो ये किसको रिलेट कर रहा है, उस बुक को। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो हम जो वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं जो रिलेट करते हैं किसी नाउन को जो पहले सेंटेंस में आ चुका है। क्लियर? So I hope abhi relative pronoun is clear to you. Now children, I'm going to erase this. And I'm going to explain reflexive pronoun. Okay. Now, reflexive pronouns क्या होते हैं? We use reflexive pronouns when the doer of the action is also the receiver of the action। हम reflexive pronoun कब यूज करते हैं, है ना, जब जो doer है, मीन्स जो subject है वो ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, वो रिसीव भी करता है एक्शन, है ना, जो एक्शन करता है वो एक्शन रिसीव भी करता है ना। We can say when the object of the sentence is the same as the subject। जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सेम सब्जेक्ट की तरह होता है तो वो क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
Now if you look at the examples given on page 70, यहाँ नीचे देखो, I pack my lunch box myself. I pack my lunch box myself. यहाँ I subject है और myself भी क्या है, ऑब्जेक्ट. जो I है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है, तो I के साथ हम myself यूज करते हैं. इसके लिए आपको ये टेबल लर्न करना होगा. ठीक है. देन लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल. चिल्ड्रन आर एंजॉइंग देमसेल्फ. चिल्ड्रन के लिए क्या यूज किया गया है, देमसेल्व्स. प्लूरल है तो लास्ट में SELVES. ठीक है. चिल्ड्रन थर्ड पर्सन प्लूरल है तो देम से देमसेल्व्स बना है. देन द थर्ड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एंजॉय योरसेल्फ. सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, और ऑब्जेक्ट भी क्या है, योरसेल्फ. जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जब सेम होता है तब हम कौन सा प्रनाउन यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, है ना. when the doer of the action is also the receiver of the action. जो एक्शन करता है वो एक्शन रिसीव भी करता है. स्वीटी go and enjoy yourself. स्वीटी के लिए go and enjoy yourself. ठीक है. सेकेंड पर्सन yourself, इसीलिए हमने SELF इसलिए यूज किया है क्योंकि स्वीटी सिंगुलर है. नाउ द नेक्स्ट वन, स्वीटी इज एंजॉइंग हरसेल्फ एट द पार्टी. अब यहाँ पे स्वीटी के लिए हरसेल्फ यूज किया है. एंड चिल्ड्रन, फॉर लर्निंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपको ये टेबल यहाँ पे प्लीज राइट. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. लर्न बाय हार्ट. दैट सब्जेक्ट प्रोनाउन आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ. यू सिंगुलर योरसेल्फ, यू प्लूरल योरसेल्फ. She herself, he himself, it itself, they themselves, we ourselves. So for you, the homework is to learn this table if you really want to understand reflexive pronoun. So that's all for today, children. Learn this table. I'll be continuing with the next exercise in my next video. That's all for today. Thank you, children. Have a good day ahead.